friends, good morning, fellow traders and investors. Thank you for taking the time to join this Q&A session regarding market talk. It was not a planned session, but looking at the market movement, जिस तरह Nifty and Indian market is falling, and not just Indian market, चारों तरफ equity market is under pressure. So I thought it will be a good time to have a discussion and clear any doubts that you might have regarding trading and investing. Please note that none of this discussion is suggesting a trade here. I'm just here to clear any kind of doubts to the best of my knowledge and share largely what I'm doing, what I'm planning to do, etc. So thank you for taking the time. Before I start any kind of discussion, I'd like to take you to my website first. This is my website, and I will recommend those who generally following me in my social media pages regularly to visit under offerings. Different offer comes up. Many of them remains free of charge, like currently the option workshop that I'm holding. It's completely free of charge. Anyone can join. Only 4 days remaining to register. Provided अगर आप पहले ज्वाइन नहीं किए हो, you have not joined previously previous workshops. ये वर्कशॉप में आई ट्राई टू गिव अ स्ट्रक्चर टू थॉट एंड स्ट्रेटेजी, कैसे अप्रोच करना चाहिए. मेन अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग. योर प्रिंसिपल इज वेरी इंपॉर्टेंट. किस तरह आप मार्केट को अप्रोच कर रहे हो रिटर्न जनरेट करने के लिए. पेशेंस के साथ अप्रोच करने से इट कैन बी वेरी वेरी रिवार्डिंग. सो ये ऑप्शन मास्टर वर्कशॉप में इट इज नॉट डायरेक्टली अबाउट दिस रेनबो सेटअप. आई ट्राई टू इम्प्रूव द जनरल बेसिक नॉलेज, वर्किंग नॉलेज मैं बोलता हूँ, जो ट्रेडिंग के लिए मिनिमम चाहिए. ऑप्शन बहुत एक वास्ट सब्जेक्ट है, बट एक सब कुछ जानने का ज़रूरत नहीं है फॉर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग. सो दोज थिंग्स आई टेक अप. दिस ऑल्सो हेल्प्स द रेनबो मेंबर्स. बहुत सारे मेंबर्स रेनबो ज्वाइन किए हैं, मे बी फॉर स्टॉक्स ओनली, बट हम लोग मल्टी एसेट कवर करते हैं. एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल कि लास्ट डे सम ऑफ द मेंबर्स रीच्ड आउट, कि मैं उनको इंस्पायर कर पाया. ऑप्शन में फाइनली उन्होंने लॉस कर रहा था, एंड फाइनली आफ्टर मेरे अप्रोच से जाने के बाद दे आर गेटिंग द कॉन्फिडेंस नाउ. सो इट इज, आई एम हैप्पी टू कि ये कुछ इम्पैक्ट क्रिएट कर पा रहे हैं. 5 सेशन रहेगा स्टार्टिंग दिस संडे. मेन नॉलेज शेयरिंग सेशंस आई हैव केप्ट फॉर संडे ताकि मेजॉरिटी ऑफ यू कैन ज्वाइन. एंड 2 सेशंस ड्यूरिंग मार्केट आवर्स, sorry, during weekdays in the evening, not in the exactly market hours. So those who are interested, I will see you during our option workshop classes. Thank you so much for taking the time for today. Before I start taking questions, queries from you, I will just have a quick show to the market. This is via my rainbow setup, but once the approach is clear, this setup is beautiful, but once the approach is clear, we can work with the line chart as well. You can clearly understand this is a breakdown, right? So this is a breakdown, significant breakdown in the short term charts. This is 2 hourly chart. 2000, I largely used to prefer 2 hour. Last year I tried 125 minutes. That is also fantastic, but once again I'm back in the 2 hour chart. ये जो रेंज था ब्यूटीफुल, एक रेंज बनाया था निफ्टी. In the hindsight, some may call it double top, but now a beautiful breakdown is happening. So जब तक ये लेवल क्लियर नहीं होता, आप लोग क्लियरली समझ पा रहे हैं फ्रॉम द चार्ट कि 600 लेवल अगर क्लियर नहीं कर पाया निफ्टी, इट रिमेन्स सिग्निफिकेंटली बियरिश. तो rather देन प्रेडिक्टिंग कि कहाँ तक निफ्टी जाएगा, मेरा अप्रोच रहता है कि अंडरस्टैंड द मार्केट, फिर सरेंडर टू द मार्केट. ये सरेंडर पार्ट लिटिल बिट टफ है. वही हम लोग प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं. आई ऑलवेज ट्राई एंड और परफेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ. गोल्ड बुलिश, सो आई प्ले बुलिश.
कोई नहीं है ऐसा एनालिस्ट वर्ल्ड में जो मुझे दिख रहा है कि हु प्रेडिक्टेड कि सिल्वर $100 तक पहुंचेगा. बट ऑल आई हैड टू डू इज follow the guidance of the market and try my best to flow with it. सो यहाँ पे निफ्टी 50 जो है मेन ब्लू चिप इंडेक्स आप लोग क्लियरली देख पा रहे हैं, इट इज एक्सट्रीमली बियरिश इन द 2 hourly chart. If we look at the daily chart also, it is extremely bearish. No point asking ki can it stop here? Yeah, it can stop. It may not stop, but it is at least for now breaking down. And ये breakdown के साथ risk significantly बढ़ गया है कि further decline हो. Weekly chart is significantly bearish too. ये भी काफी bearish है. ये मैंने हाईलाइट किया था कि लास्ट डे कहीं पे भी अगर मैंने डिस्कस किया चलो ये लेवल ब्रेक हो गया तो निफ्टी बुलिश नहीं है. वीकली चार्ट में अब हम लोग कह सकते हैं कि निफ्टी इज बियरिश. एक डाउ स्ट्रक्चर बन चुका है. सो बियरिश मार्केट में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि कोई भी स्टॉक नहीं मिलेगा जो बाई करने के लिए, बट सिचुएशन टफ हो जाता है, जिगजैग बढ़ जाता है. स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स क्या होगा कि currently they are weakening, but once Nifty is some bounce back, they will be stronger and outperforming. But as a beginner के लिए सच स्टॉक को ढूंढ पाना तो आसान है, इट इज इजियर टू फाइंड, बट उनमें स्टे करना डिफिकल्ट हो जाता है. एंड ऊपर से अगर हम लोग वीक स्टॉक्स में रहेंगे, फॉर एग्जाम्पल currently आई एम नॉट नेवर सेइंग दैट दिस इज अ बैड स्टॉक फंड, बट इट इज वीक. एंड जब वीक है तो इसमें अगर हम लोग रहेंगे तो बियरिश ही ड्रॉ डाउन ही मिलेगा. सो मार्केट के साथ अवेयर रहने से खुद का जो अपना जो साइकोलॉजी है टुवर्ड्स ट्रेडिंग वो एकदम क्लियर रहता है, बेटर परफॉर्मेंस आता है. सो मेरा अप्रोच यही है कि मार्केट के साथ फ्लो करना. एंड रिसेंटली जो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में हो रहा है विद ग्रीनलैंड, ट्रम्प, तारीफ, रिस्क रिमेन्स सिग्निफिकेंटली ऑन द हायर साइड. एंड अभी मैं बिल्कुल ही नहीं बोल पा रहा हूं, आई एम श्योर आप भी नहीं बोल पा रहे हैं कि फर्दर ड्रॉडाउन नहीं होगा. ये जो लेवल ब्रेकडाउन हो रहा है इसके साथ साथ शार्प सेल ऑफ भी आ सकता है निफ्टी में. सो कैसे गेम खेलना है इसमें, तो बियरिश स्ट्रेटेजी खेलना है वेरी क्लियरली. मार्केट बियरिश तो हम लोग बियरिश स्ट्रेटेजी प्रेफर करेंगे, मार्केट बुलिश तो हम लोग बुलिश स्ट्रेटेजीज प्रेफर करेंगे. उसमें क्या रहता है कि चलो कोई फ्यूचर ले सकता है, ऑप्शन है, बियर पुट स्प्रेड है, बियर कॉल है. किस तरह आप अप्रोच करेंगे वो भी आपको क्लियर होना चाहिए मार्केट कंडीशन में. बट वन ऑफ इंपॉर्टेंट इज कि डोंट डाउट, डोंट क्वेश्चन, डोंट प्रेडिक्ट, ट्राई टू फ्लो विद द मार्केट. सो करंटली मैं क्या देख पा रहा हूँ, दिस सेटअप आई यूज बिकॉज इट हेल्प्स मी टू क्लियरली गेट एन आइडिया एंड रिमेन इन अ ट्रेड विदाउट एनी कंफ्यूजन कि कौन से साइड मार्केट में टर्न अराउंड है. इट इज वेरी वेरी बियरिश. सो इज दैट पॉइंट व्हाट ट्रेड्स विल प्रेफर, बियरिश ट्रेड्स ओनली. इफ यू लुक एट द मार्केट का ब्रेड्थ आप देख सकते हैं निफ्टी में 11 स्टॉक इज अप, 11 स्टॉक विद इन निफ्टी 50 एंड 39 स्टॉक्स आर डाउन. सो जिस तरह भी मार्केट को देखा जाए वो क्लियरली क्लियरली बियरिश है. सो जब बियरिश है डाउट मत कीजिए, दैट विल बी माय फर्स्ट एडवाइस. ट्राई टू प्ले विद द मार्केट. अगर आपको बियरिश स्ट्रेटेजी नहीं आता है कोई बात नहीं, यू डोंट वांट टू प्ले ऑप्शन, देन एटलीस्ट स्टे आउट ऑफ द market, stop playing the bullish strategies and look for different asset class like gold, bond to generate a good return. I'll take up any questions that you might have as जैसा ये सेशन है कोई Q&A. मेरा मार्केट टॉक सेशन इज ऑन थर्सडे. आज कोई प्लान नहीं था कि एक सेशन लूं, बट जिस तरह मार्केट फॉल हुआ है, नर्व्स रेटल है, लोग टेंशन में हैं, सो इसलिए मैं सोचा एक बार एक सेशन लिया जाए. सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस हियर I'll try to answer to the best of my knowledge and whichever way I can contribute. सौरभ जी का क्वेश्चन, हाउ टू अप्रोच गोल्ड ऑन 2 hour चार्ट एज देर इज नो डाउ स्ट्रक्चर बट एज पर रेनबो इट लुक्स बुलिश.
डाउ स्ट्रक्चर नहीं है, ये हो नहीं सकता, दैट इज नॉट पॉसिबल। लेट्स लुक एट गोल्ड डाउ स्ट्रक्चर के साथ, देन डेफिनेटली रेनबो इज देयर टू गाइड अस। हम लोग इसको तो देख ही सकते हैं। आई चेंज इट टू कमोडिटी फर्स्ट एंड आई प्ले गोल्ड मिनी फॉर एग्जांपल, और गोल्ड कॉमिक्स भी कर सकते हैं। अभी के लिए सेटअप को ऑफ करते हैं एंड ब्रिंग डाउन द लाइन चार्ट। ये रहा डाउ स्ट्रक्चर, अप एंड अप, बुलिश डाउ स्ट्रक्चर में क्लियरली 2 घंटे के चार्ट रेंज था, देन फिर से ब्रेकआउट एंड ब्यूटीफुल राइड। जिनको कैंडल स्टिक पसंद है, लेट्स डू सम कैंडल स्टिक्स। वीकली चार्ट में भी दिख रहा है नया हाई ब्रेक हुआ है, बट लेट्स लुक एट द कैंडल स्टिक। इस तरह का कैंडल बहुत बुलिश होता है। अगर आप कैंडल स्टिक के बारे में नहीं जानते, दिस इज कॉल्ड शेप्ड बॉटम कैंडल। दीज आर प्रिटी बुलिश कैंडल्स, सिग्निफिकेंटली बुलिश कैंडल्स। एंड यूजुअली अगर ये लो ब्रेक नहीं हुआ तो इट दीज रिमेन्स गो फॉर वेरी स्ट्रॉन्ग मूव। एंड जिस तरह करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन आ गया, ट्रम्प इज सो सीरियस अबाउट द ग्रीनलैंड, और मे बी ही इज सो सीरियस ऑन द ग्रीनलैंड कि उस उनसे बेटर कॉन्सेशन मिला जाए, जो भी है, ये जियोपॉलिटिकल रिस्क को बढ़ा दिया है। और जब भी जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ जाता है, इट इज नॉट द इक्विटी मार्केट डाउन मूव, बट जियोपॉलिटिकल रिस्क जब बढ़ जाता है, गोल्ड सिग्निफिकेंटली बेनिफिट। इसीलिए आज आपको दिखेगा कि गोल्ड इज आउट परफॉर्मिंग सिल्वर, एंड द रीजन इज कि बिकॉज ऑफ द चेंज इन द जियोपॉलिटिक्स। ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बियरिश के बाद ये जो टॉप था, क्लियर ब्रेकआउट हुआ है, एंड उस ब्रेकआउट के बाद आज शेप्ड बॉटम कैंडल। शेप्ड बॉटम कैंडल का मतलब जहां पे मार्केट खुला वहीं से कॉन्टिन्यूअस बुलिश या तेजी आ रहा है। सो ऐसा बिल्कुल ही नहीं होगा सर कि बियरिश बुलिश डाउ स्ट्रक्चर नहीं आएगा, ऑलवेज स्ट्रक्चर आएगा। डेली चार्ट देखेंगे, 2 आवर चार्ट देखेंगे, हमेशा डाउ स्ट्रक्चर रहेगा ही। बट ये डाउ स्ट्रक्चर जो लोग ट्रू प्रैक्टिशनर्स हैं, मतलब जब आप पहली बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसे पाथ को ड्रॉ कीजिए। एंड ये जो हर टार्न है, उस टार्न का हर चेंज को ड्रॉ करना चाहिए। हर जो कार्व हो रहा है मार्केट में, उसको ड्रॉ करना चाहिए। ये प्रैक्टिस के साथ क्या होगा, आप डायरेक्टली बहुत कुछ देख पाएंगे जो इमीडिएटली आप शायद डाउट कर रहे हैं कि डाउ स्ट्रक्चर नहीं है। डाउ स्ट्रक्चर होगा ही 100%। एंड ये आप 15 मिनट में जा सकते हैं। ये ब्रेकआउट होगा तो एक नए डाउ स्ट्रक्चर बनेगा। सो किसी भी तरह मार्केट को देखा जाए, डाउ स्ट्रक्चर एक वन ऑफ द बेसिक है मार्केट का। जिनको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में कुछ भी नहीं आता, उनको सबसे पहले डाउ स्ट्रक्चर प्रैक्टिस करना चाहिए। ये बेसिक है, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल है। कोई भी स्टॉक का चार्ट भी अगर आप देखेंगे, जैसे एक स्टॉक मैंने हाईलाइट किया, मुझे मालूम नहीं कि स्टॉक नीचे जाएगा कि नहीं, दैट पार्ट आई डोंट केयर अबाउट। कि जब डाउ स्ट्रक्चर बियरिश है वो दिख जाता है। एप्पल, होप का कोई जगह नहीं है, क्लियरली दिख रहा है। अगर हम लोग वीकली चार्ट में जाएं, एक कार्व, जो ओरिजिनल प्रैक्टिशनर्स है डाउ, वो हर कार्व को नोट करेंगे। सो क्लियरली एक ब्रेकडाउन है एप्पल में। सो एटलीस्ट ये बुलिश नहीं है। प्रीवियस, द मोमेंट ये स्विंग ब्रेक हो गया प्रीवियस, ये बुलिश नहीं रहा। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आप होल्ड मत कीजिए स्टॉक को, बट एटलीस्ट आपको अवेयर होना चाहिए ये बुलिश नहीं है, फर्दर डिक्लाइन आ सकता है। एंड तब जाके आपका माइंड क्लियर रहेगा कि हाँ, ये और डिक्लाइन हो सकता है, ये एक्सपेक्टेड है। जब कुछ चीज हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे तो ब्रेन उसके लिए प्रिपेयर्ड रहता है। आप निफ्टी को देखिए, कोई बोलेगा अरे कैसे ये हो गया सडनली, क्योंकि वो लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं निफ्टी का स्ट्रक्चर कि देखिए बियरिश है। अब इसको डाउट करने से कुछ चेंजेस नहीं होगा, इट इज क्लियरली एक बियरिश स्ट्रक्चर में। अब कहां जाएगा, यहां पे जाएगा, 20,000 हो जाएगा, वो पूरा डिफरेंट क्वेश्चन है।
आप अगर स्टॉक के लिए किसको देखना चाहिए, निफ्टी 500, देखिए बियरिश है। एक तो पहले बुलिश चला गया यहां से, एंड देन अब स्ट्रक्चर बियरिश हो गया। तो अगर आप स्टॉक जरूर होल्ड कर रहे हैं, डेफिनेटली कुछ स्टॉक बढ़ेगा, मे बी यू हैव फेथ इन द कंपनी दैट यू आर होल्डिंग, बट यू एक्सेप्ट कि देयर कैन बी बिग ड्रॉ डाउन। कुछ लोग गलत कर देते हैं टाइमिंग और फंडामेंटल में। जैसे एक पोस्ट मैंने रिसेंटली देखा, हमारा राजा बैटरी, ये बियरिश है। वो बोल रहे हैं दिस, हमारा राजा को बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, या ऑटो सेक्टर एक्सपेंड कर रहा है, इसका बैटरी बहुत इंपॉर्टेंट है। आ, बट ये अभी के लिए बियरिश है। तो अगर आप होल्ड कर रहे हैं, एटलीस्ट मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि ये फर्दर ड्रॉ डाउन आएगा। एंड अगर आप ट्रू इन्वेस्टर हो, यू रियली हैव फेथ कि नहीं हमारा राजा इज द वन, ह्यूज पोटेंशियल, देन डेफिनेटली आपको एक्साइटमेंट होना चाहिए, भाई मुझे चीपर मिल रहा है ये स्टॉक। वाई वुड यू बी इन टेंशन? टेंशन तभी होगा जब आपके ओन थीसिस में फेथ नहीं है। एक नंबर कि आपका फेथ नहीं है कंपनी में। नंबर टू, आप गलत बोले हैं खुद के बारे में, भाई मैं इन्वेस्टर नहीं हूं, आई वॉज अ स्विंग प्लेयर, बट मैं सोच रहा था आई एम एन इन्वेस्टर। टेंशन आ जाएगा। थर्ड इज, आपको क्लैरिटी नहीं है कि करंटली टाइमिंग वाइज क्या हो रहा है, यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि ड्रॉ डाउन। तब जाके क्वेश्चन आएगा, अरे ये क्या हो रहा है मार्केट में। सो इसीलिए इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग प्रिंसिपल जो है खुद का, वो वेरी क्लियर होना चाहिए, नहीं तो गलती हो जाएगा। जैसे मैं मानता हूं कि आई एम नॉट अ वैल्यू इन्वेस्टर, मुझे नहीं समझ में आता एक कंपनी का। मेरे पास फंडामेंटल ट्रिक है, मुझे डिस्काउंटेड कैश फ्लो मालूम है, आई नो हाउ टू वैल्यू, बट मुझे उसमें फुल फेथ नहीं है। सो आई नो दैट आई एम नॉट अ वैल्यू इन्वेस्टर, आई व्हाट आई डू, आई प्ले अ स्विंग, मैं स्विंग खेलूंगा। सो वंस ये पोर्शंस क्लियर है खुद के बारे में, देन ट्रेडिंग सिग्निफिकेंट फ्लरिश कर सकता है। सो कॉमिक्स गोल्ड आप हाईलाइट के, थोड़ा कॉमिक्स गोल्ड में भी डाउ स्ट्रक्चर है कि ना, है कि नहीं देखते हैं। कॉमिक्स गोल्ड एक जो इंटरनेशनल वीकली में तो है ही, दिख रहा है, डेली चार्ट में दिख रहा है क्लियरली। अब 2 आवर चार्ट कॉमिक्स बंद था, ये जोन को ब्रेकआउट हुआ है। अब फिर से क्या आएगा थोड़ी देर बाद, मे बी टुमारो, मे बी टुडे, अ करेक्शन, देन इफ गोल्ड इज रियली बुलिश इट विल अगेन ब्रेक हायर, एक नया स्ट्रक्चर बना। So Dow structure या zone breakouts like this will remain. 4713 ब्यूटिफुली राइजिंग गोल्ड, सिंगल साइडेड, वही जो मैंने बोला कि जियोपॉलिटिक्स के वजह से गोल्ड इज बीइंग सिग्निफिकेंटली बुलिश। गोल्ड एंड सिल्वर जो मैंने दिखाया विशाल जी, इट इज बुलिश। अब बुलिश तो है, सपोज यू आर आउटसाइड, कैसे खेलेंगे? विल यू बी प्लेइंग अ लॉन्ग फ्यूचर, उसके साथ हेज करेंगे? हेज करेंगे तो $100 पे में भी सिल्वर आप हेज करेंगे, या फिर आप नेकेड फ्यूचर बाय करेंगे, बुल कॉल स्प्रेड खेलेंगे, क्या एग्जैक्टली गेम यू विल प्ले? बुलिश समझ में आ गया, देन उसके बाद डिसाइड करना होता है कि हाउ विल आई बी बुलिश। तो उसमें मैं बहुत इंपॉर्टेंस देता हूं ये प्लान्स को, देन अपना साइकोलॉजी सही दिशा में रहता है। आर द गवर्नमेंट, गोपाल जी का क्वेश्चन, आर द गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड्स नॉट ऑलवेज अवेलेबल इन द मार्केट्स? ऑलवेज का मैं समझा नहीं, इट यूजुअली पर्टिकुलर डे में ऑक्शन रहता है, मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे को कोई गवर्नमेंट बॉन्ड नहीं रहता। जैसे आज मैं देखूं तो यूजुअली ये रहता है हर दिन, एक्सेप्ट आई थिंक फ्राइडे नहीं रहता। सो लेट मी चेक द बीट सेक्शन, आज अवेलेबल है, आज अवेलेबल है अंडर जीरो था गवर्नमेंट, 91 डे 3 महीने का बिल, 182 डे 6 मंथ का बिल, एंड 364 डे 1 ईयर का बिल। सो एक एक बढ़िया स्ट्रेटेजी जो मैं ऑप्शन वर्कशॉप में भी डिस्कस करूंगा, अप्रोच बढ़िया स्ट्रेटेजी मिल सकता है कि निफ्टी का अगर एवरेज 14 देता है, मेजोरिटी लोग
93%, अगर 7% भी नहीं बना पाते, इफ आई हैव अ स्ट्रेटेजी और वे अप्रोच जिसमें मैं 20% कर पाऊं, दैट इज फैंटास्टिक। मेजोरिटी नहीं कर पा रहे, एंड निफ्टी का एवरेज बहुत लॉन्ग टर्म, ऐसा नहीं कि आज मैं बाई करूं नेक्स्ट ईयर 14%, लॉन्ग टर्म में एवरेज इज 13.5 अराउंड। तो अगर उस ये दोनों को देखते हुए इफ अगर कोई स्ट्रेटेजी बन गया जिसमें मैं 20% कर सकता हूं, मैं तो बोलूंगा वो फैंटास्टिक है। अब इसको करते जाना है ऑन ए रेगुलर बेसिस। तो इसमें बॉन्ड कैन बी यूजफुल टू प्लेज, एंड सेफली ऑप्शन को खेला जा सकता है। सो कोई कोई दिन में अवेलेबल रहता है, हर दिन बॉन्ड्स नहीं रहता है, लार्जली कुछ डे लाइक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जैसे आज सम बॉन्ड्स, कल था स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड्स, आज स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड नहीं है। प्रीति जी का क्वेश्चन, इज इट ओके टू हैव शॉर्ट टर्म बॉन्ड फ्रॉम जीरोधा एंड लॉन्ग लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स पीपीएफ? या पीपीएफ को डेफिनेटली मैं प्रेफर करता हूं बिकॉज ऑफ देयर टैक्स स्ट्रक्चर। उनमें टैक्स एग्जेम्प्टेड है, दैट इज गुड। अपना पोर्टफोलियो में अगर आप ऐसा मिक्स रखेंगे कि गोल्ड, बॉन्ड, स्टॉक्स, तो ओवरऑल डिफरेंस, ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड है जो रे दालियो ने बोला, डिफरेंट लोग बोले, सिर्फ रे दालियो नहीं, आ, कि हैविंग अ मल्टी एसेट पोर्टफोलियो और डाइवर्सिफिकेशन जो बोलते हैं, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड ऑफ कटिंग द रिस्क, बट अपना अपसाइड को ओपन रखेंगे। प्रीति जी आप ही देखिए, जो एसआईपी मैंने सजेस्ट किया कि इन आवर क्लासेस बोथ सीसीएमटी मास्टर क्लास एंड जो अपना रेनबो सेशंस, दे आर आउट परफॉर्मिंग, निफ्टी को सुपर आउट परफॉर्म कर रहे हैं। गोल्ड हैज गिवन 65-70% रिटर्न इन 1 ईयर, वेर एज हम लोग का इंडेक्स रिटर्न था लास्ट ईयर अराउंड 7 to 8%। सो हैविंग मल्टी एसेट इज नॉट अ चॉइस, आई थिंक इट हैज टू बी। अगर आप रहेंगे तो बेटर परफॉर्मेंस आएगा। जैसे करण जी जानते हैं कि बहुत बढ़िया सुपर रिटर्न निकाले, कैसे निकाले? ही वेंट फॉर गोल्ड, गोल्ड में इन्वेस्ट किया, फिर उसको प्लेज किया। जैसे जैसे गोल्ड बढ़ते गया उनका प्लेजेबल मार्जिन बढ़ते गया, उनसे वो डिफेंसिव ऑप्शन स्ट्रेटेजी किए, और ऑप्शन स्ट्रेटेजी से रिटर्न आया, गोल्ड से रिटर्न आया, तो ओवरऑल उनका पोर्टफोलियो में सुपर रिटर्न निकाले वो। सो इट इज पॉसिबल, बट ये मैं नहीं बोल रहा हूं पहले ही आप जंप करो कि सुपर रिटर्न। पहले अगर आप बेसिक जो मुझे चाहिए, लेट्स हैव अ प्लान कि मैं 20% कर पाऊं, देन जो मेजोरिटी नहीं कर पा रहे, देन आई विल लुक फॉर 30, 40, 50, एंड कभी कभी मार्केट हमें बहुत रिवार्ड करेगा, जैसा गोल्ड में किया। सिमिलरली स्टॉक में करेगा, लेट निफ्टी क्रैश कंप्लीटली, लेट्स एसएनपी नैस्डैक सब गिर जाए, बट गिर जाने का तो ये नहीं होगा कि इट विल बी ओवर, मार्केट ही खत्म हो जाएगा, इट विल बी एंड ऑफ द वर्ल्ड। अगर एंड ऑफ द वर्ल्ड है तो फिर मैटर ही नहीं करेगा कुछ, बट अगर एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है देन विल बी एबल टू बाई एट द बॉटम। सो आई थिंक मेजोरिटी ऑफ द क्वेरी, नहीं अदर किसी का क्वेश्चन है तो जरूर पुट डाउन कीजिएगा। ओवरऑल जो सिचुएशन है मार्केट का आई हैव एक्सप्लेन टू यू। लेट्स इन द मीन टाइम टेक अ क्विक लुक कि कौन सा सेक्टर में मुझे स्टिल स्ट्रेंथ दिख रहा है। आप लोग जब तक क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हैं, लेट्स लुक एट, ये है वीकली चार्ट। लाइन चार्ट या कोई भी चार्ट रेनबो के साथ अप्लाई ना करना बेस्ट होता है। मैं रिकमेंड करता हूं कुछ लोगों को, चलो लाइन लगा लो बिकॉज यू आर नॉट फेमिलियर विद द रेनबो, बट रेनबो अलोन इज द बेस्ट। सो यहां पे क्या दिख रहा है आपको? दिख रहा है कि सारे के निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, निफ्टी 100, एवरीवेयर वीकनेस, हर जगह। तो ऐसे सिचुएशन में बुलिश स्ट्रेटेजी और रिस्की, बट कोई एक एक जन कल मुझे रीच रीच किया,
कि वो 1 मिनट में गोल्ड खेल रहे हैं। मैंने आज तक कभी नहीं खेला 1 मिनट में गोल्ड। सो डिफरेंट पीपल ट्राई आउट डिफरेंट थिंग्स। आई होप वो सक्सेस मिल रहा है उनको विथ 1 मिनट। आई विश ऑल द बेस्ट, बट मैं कभी भी 15 मिनट 1 मिनट आई विल नॉट ट्रेड। आई विल गो फॉर 2 आवर और डेली चार्ट फॉर गोल्ड ट्रेडिंग। सो निफ्टी क्लियरली बियरिश, हर सेक्टर प्रेशर में, एंड दिस इज एक्साइटिंग होना चाहिए। क्यों एक्साइटिंग होना चाहिए? ये जो ये टाइम है, कौन सा सेक्टर, लेट्स लुक एट फॉर एग्जांपल, और एक बार बाकी सेक्टर्स को देख लेते हैं। मेटल स्टिल स्ट्रॉन्ग बिकॉज ओवरऑल कमोडिटीज हैव बीन अप। आईटी सेगमेंट न्यूट्रल। तो इस ये सब फेज में करना क्या इंपॉर्टेंट इज होमवर्क। 5P याद रखिए। प्रायर प्रिपरेशन प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। ये जो टाइम है रेगुलर लोगों के लिए, दिस इज अ पैनिक टाइम। एंड कोई भी इंडिकेटर से, दिस इवन इंक्लूडिंग द रेनबो, व्हाट वर्क्स बेस्ट, सबसे बढ़िया इंडिकेटर क्या है इन द वर्ल्ड? साइकोलॉजी। लोग हमेशा पैनिक करेंगे, और हम लोगों को क्या करना है, उस पैनिक का बेनिफिट लेना है, तभी जाके आउट परफॉर्मेंस आएगा। तो इस टाइम पे करना क्या है कि जस्ट अ मोमेंट, कि चलो आईटी सेक्टर, अब आज तो सब गिरेगा ही, but within this IT segment there will be different types of chart. Let me open up the stock master for stocks. कोई भी सजेशन नहीं है, याद रखिए, रिस्क मैनेजमेंट रूल नंबर 1, किसी का सुन के ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट नहीं करना। दो चार्ट डिफरेंट है, ये जो ओरेकल और इन्फी, टू चार्ट्स आर डिफरेंट। आप फ्यूचर के लिए इसको नोट करना चाहेंगे, rather than trying to say सर ये ऊपर जा सकता है या नीचे, क्या होगा, rather than क्या डिफरेंस है चार्ट में, दोनों का डाउ स्ट्रक्चर सेम नहीं है। निफ्टी आज डाउन है, बहुत ही एक्सपेक्टेड है इट विल बी डाउन इन सच अ बियर, बट इसका डाउ स्ट्रक्चर एंड इसका डाउ स्ट्रक्चर इज नॉट सेम। टेक महिंद्रा डाउ स्ट्रक्चर एंड कोफॉर्ज डाउ स्ट्रक्चर इज नॉट सेम। आप इनको नोट करना चाहते हैं, कौन है वो लीडर्स जो ऐसे बियरिश मार्केट में भी अपना स्ट्रेंथ होल्ड कर पा रहा है। दैट क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए क्या टेक महिंद्रा यहां से 50% जा सकता है, 20%, वो तो समय बताएगा। हम लोग का जॉब है कि ये जो बियरिश मार्केट्स आर बेस्ट, मुझे तो बहुत पसंद है, दो रीजन से मुझे पसंद है। एक, आई कैन गेट चीपर, और बुल मार्केट में सब लोग हीरो होते हैं। हर बार ऐसा मैं देख, हर बार होता है, वेन एवर मार्केट इज बुलिश, many of my friends who are not traders but in the IT and other segment, they decide to leave their job and they say किससे तो हो सकता है, कमाई तो आ रहा है ब्यूटीफुली। When they say that, I think it becomes the time, okay, I'll have to be cautious. LT माइंड ट्री, ये तो दिख रहा है डबल टॉप, ये दोनों चार्ट तो सेम नहीं है, दोनों आईटी सेगमेंट में है। ऐसा नहीं कि आपको हम लोग जंप करना चाहेंगे, वी वांट टू नोट, एटलीस्ट मैं नोट करना चाहूंगा कि दोनों ऐसा कौन सा चार्ट है विच आर स्ट्रॉन्ग, और उनमें अच्छे टाइम पे एंट्री मिल जाएगा। ये देखिए वीकनेस हो रहा है, हटाओ इसको, मैं इसको रेड से हटा दूंगा। परसिस्टेंट, वेट करना पड़ेगा शांति से कि इसका चार्ट क्या होगा, फ्यूचर विल देयर बी अ ब्रेकआउट। जब होगा मुझे आइडिया आएगा, बिकॉज मैं अवेयर हूं इसके बारे में, आप अवेयर हैं, चलो यहां पे ब्रेकआउट हो सकता है। HCL टेक बेस के ऊपर सस्टेन कर सकता है। अब क्या करते हैं, चलो डेली चार्ट, आज एक करेक्शन हो रहा है जो RSI को देख के पता चल रहा है। अब हमें क्या चाहिए होता है कि एक, जब हम लोग फाइंड आउट कर लिए कि विच आर द स्ट्रॉन्ग स्टॉक, से टाइमिंग वाइज दो पार्ट है जो मैंने बोला, फंडामेंटल एंड द टाइमिंग।
व्हेन दे आर कमिंग बैक इनटू स्ट्रेंथ। उसके लिए डाउ भी किया जा सकता है, ऐसा रेनबो हेल्प्स, बट डाउ भी ये हुआ, आईटी सेक्टर विल कम बैक और ओवरऑल निफ्टी विल कम बैक टू स्ट्रेंथ, ये होगा ब्रेकआउट। तो ऐसे बियरिश मार्केट में सॉर्ट आउट करने से आप बेटर पोजीशन रहेंगे। जब मार्केट वापस आएगा यू विल बी इजी टू फाइंड आउट द स्ट्रॉन्ग स्टॉक से टीसीएस। अगर इसमें रहोगे कोई बात नहीं, यू कैन रिमेन, बट एटलीस्ट बी अवेयर कि और फार्दर डाउनसाइड हो सकता है। वीकली चार्ट, डाउ स्ट्रक्चर बियरिश हो गया, मतलब टीसीएस और भी गिर सकता है सिग्निफिकेंटली। अगर ये आपके काउंटर में नहीं हुआ, दैट विल बी अ प्रॉब्लम। डाउ स्ट्रक्चर के साथ अगर आप और थोड़ा सीखेंगे, क्या सीखना है नेक्स्ट इज चार्ट पैटर्न। फ्यू पैटर्न जो मैंने अपना संडे स्टॉक स्टोर में ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, यहां पे अवेलेबल है। कॉमन पैटर्न, अनकॉमन प्रॉफिट, ये होगा उसका ऑपोजिट। इसको बोलते हैं हेड एंड शोल्डर, विच इज सिग्निफिकेंटली बियरिश पैटर्न। सो दैट मीन्स कोई टीसीएस में रह सकता है बाई करके, मे बी किसी ने आज से 20 साल पहले बाई किया, शुड रिमेन इन द टीसीएस, बट अवेयर कि नाउ इट कैन ड्रॉप मोर, नहीं तो टेंशन आ जाएगा, अरे ये स्टॉक गिर रहा है। तो फर्स्ट थिंग इज हैविंग द प्रिंसिपल करेक्ट। कौन हो आप, नहीं तो गलती हो जाएगा पूरा। सो टीसीएस को हटाओ, एचसीएल टेक, परसिस्टेंस, ये चार पे ध्यान रहना, दैट्स इट। सिमिलरली हम लोग मेटल में कर सकते हैं, बैंक में जस्ट वीकली बैठ के करना है। वीकली चार्ट करने से क्या होता है, एज अ आपका दूसरा बिजनेस है। जैसे मैं 1 मिनट नहीं करता, आज शाम को मैं अपने दीदी के घर जाऊंगा और वहां पे आज एक छोटा मोटा पार्टी है। अब बोली मैं वहां जाऊं या 15 मिनट का चार्ट में गोल्ड को ऑब्जर्व करते रहूं। बट वहां जाते हुए भी मैं 2 घंटे के चार्ट या डेली चार्ट अगर कोई ट्रेड शांति से कर सकते हैं। गेम डिफरेंट होता है। 1 मिनट चार्ट वाला विल डू 100 गोल्ड मीनिंग, छोटा कमाएगा, विथ ह्यूज क्वांटिटी विल मेक प्रॉफिट। मैं करूंगा 20 गोल्ड मिनी एंड विल होल्ड। सो अप्रोच क्या होगा आपका, वो पहले डिसाइड कीजिए। So how to apply option master on US index or stocks? पहले तो ऑप्शन मास्टर का कॉन्टिन्यूअस मैं रिसेंटली अपडेट नहीं कर पाया। इट इज एक्चुअली इसको अपडेट हो रहा है, बट जितना फास्ट पहले हो रहा था उतना नहीं हो पा रहा है, बिकॉज मैं थोड़ा बिजी था। एंड डेफिनेटली इसको, ये जो ओरिजिनल मास्टर है, ये जो मास्टर डैशबोर्ड, इसको स्टॉक में भी अप्लाई किया जा सकता है। अलोंग विद दैट इसको इंडेक्स में भी अप्लाई किया जा सकता है। सो अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा चार्ट में आप ट्रेड करेंगे, टाइम फ्रेम क्या होगा। सपोज आप S&P 500 फ्यूचर के ऊपर लगा रहे हैं एंड आपने डिसाइड किया वीकली चार्ट इज नॉट फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग अनलेस न्यूट्रल ट्रेड कर रहे हैं, मतलब रेंज बाउंड ट्रेड। सो पॉसिबली डेली और 2 आवर चार्ट में ट्रेड करेंगे। तो यहां पे क्या दिख रहा है कि बियर कॉल स्प्रेड। अब हम लोग का जो एनालिसिस है कि कैसे फिर स्ट्राइक डिसाइड करते हैं, लार्जली इस टाइम पे क्या खेल सकते हैं। बिफोर ऑप्शन में इमेंस टाइप ऑफ स्ट्रेटेजीज हैं, और हर स्ट्रेटेजी के अंडर अप्रोच है कि मैं 15 मिनट कर सकता हूं, डेली कर सकता हूं, 2 आवर कर सकता हूं। 2 आवर में से करेक्शन में मैं बाई सपोर्ट सॉरी सेल रेजिस्टेंस कर सकता हूं। बियर कॉल स्प्रेड मतलब बियरिश गेम डिफेंसिव पहले प्रैक्टिस करना चाहिए, विच इज मोर प्रॉफिट, हायर सक्सेस रेट रहता है, क्योंकि वो ऑप्शन का स्ट्रक्चर है। बिकॉज सेलर्स मेजोरिटी विन।
तो ये होगा लेवल 7,000। 7,000 से चालू करूंगा बियर कॉल एसएनपी में। रिगार्डिंग स्टॉक में भी नाउ इसका और एक मीटर है, स्ट्रेटेजी ऑन, बट ये मीटर इज डेडिकेटेड टू निफ्टी। वी हैव आई वाज नॉट एबल टू एक्सपेंड इट येट। मैं अपडेट करने की कोशिश करूंगा जल्दी ही, डिफरेंट और इनपुट डाल के, ताकि ट्रेड बेहतर हो। करंटली दिस रीडिंग लार्जली फोकस ऑन निफ्टी, सो ये रीडिंग एप्लीकेबल नहीं है। बट आपका ओरिजिनल जो मास्टर है, या आप क्रेडिट स्प्रेड लगाएंगे, यहां पे देखिएगा क्रेडिट स्प्रेड, तो डायरेक्टली आपको यहां पे सिग्नल दिखा देगा कि कौन सा ट्रेड चल रहा है। अब ट्रेड चलना इनफ नहीं है, मुझे क्या चाहिए, फर्स्ट टारगेट डिसाइड कीजिए। आप कर पाएंगे कि नहीं, डिफर जो बोलते हैं ना कि अगर हम लोग मून को टारगेट करेंगे तो थोड़ा क्लाउड तक पहुंचेंगे। तो पहले चलिए टारगेट करते हैं कि मुझे 40% ईयरली रिटर्न चाहिए। अपने कैपिटल का 80% ब्लॉक करेंगे। मुझे सक्सेस रेट चाहिए अराउंड 80%, अप्रोक्सीमेटली, जो हम लोग का ऑप्शन सेलिंग में रहता है। इफ वी डू इट प्रॉपरली, एटलीस्ट एज पर स्टूडेंट भी आप लोग देखेंगे जो रेनबो में है। लास्ट डे देव सर ने क्या बोला कि उनका अभी भी परफेक्ट कर रहे हैं, बट देव सर या नेक्स्ट किसी ने बोला कि उन वो 90% सक्सेस रेट मिल रहा है। कोई गारंटी नहीं कि फ्यूचर में मिलेगा, शुड नॉट मीन्स उसको प्रमोट नहीं करना चाहता हूं, बट बेसिकली दिखाना, चलो 80% अप्रोक्सीमेटली लिया, एंड नाउ चलो 10 days टिल एक्सपायरी, तो कितना रिटर्न चाहिए मुझे मिल जाएगा यहां पे। लेट मी मेक इट स्लाइटली बिगर, तो आप लोग देख पाएंगे कि 1.8% अगर मुझे मिल गया तो इनफ है। जैसे निफ्टी, निफ्टी में एक बार लगाते हैं। निफ्टी में ट्रेड करूंगा कौन से में कि 2 आवर में। आई प्रेफर द 2 आवर। 2 आवर में नेक्स्ट एक्सपायरी कब है, 27th। कितना दिन बाकी है, 7 days, और मुझे 40% रिटर्न चाहिए। मतलब 7 days में मुझे 40%, अगर मुझे ये लॉस, ब्रोकरेज कॉस्ट, सॉरी ब्रोकरेज विल बी 10% ऑफ प्रॉफिट, एनुअलाइज रिटर्न चलो 40% चाहिए, एंड करते ही मुझे कितना रिटर्न कमाना है ये 7 दिन में, जस्ट 1.3%। आप लोग सोचो कि अगर मेजोरिटी नहीं कर पा रहे इसमें सक्सेस, 20 इज वेरी ग्रेट। अगर विथ प्रैक्टिस हम लोग 40 कर पाए, देन दैट इज फैंटास्टिक, वेरी वेरी गुड। और उसके लिए ज्यादा नहीं चाहिए, 1.3%। आप बियर कॉल लगा के देखो, काफी दूर रहेगा पोजीशन। उसके साथ साथ लेवल सजेशंस तो है ही, बट पहले आप दूर रह के देखो, कॉन्फिडेंस बिल्ड अप होने दो कि ओके चलो, आई कैन डू इट। नाउ धीरे धीरे अपना रिस्क बढ़ाओ कि इस फर्स्ट 3 months आई टारगेटेड 15, देन आई टारगेट 20, 25, 30, ऐसे करके ग्रो करो। देन शांति से आप बहुत सालों तक ये गेम खेल पाए। ये ऑप्शन मास्टर में भी मैं सजेस्ट दिखाऊंगा, एंड वी कैन डू दिस विद डाउ ऑल्सो। मतलब रेनबो से डेफिनेटली हेल्प होता है, बट विदाउट रेनबो ऑल्सो वी कैन डू इट विद द डाउ स्ट्रक्चर। डाउ स्ट्रक्चर का नॉलेज इज मस्ट। इसीलिए जो लोग सेटअप लेते हैं, तभी भी मैं बोलूंगा कि डाउ स्ट्रक्चर सीखना पड़ेगा इंप्रूवमेंट के लिए। सो डाउ स्ट्रक्चर अगर आप लगाएंगे तो बस पूछना है मार्केट को क्या करना है, बियरिश करना है डाउ स्ट्रक्चर में। अब आप देखेंगे आप पॉसिबली इस लेवल पे कि 26,000 या 25,900 के लेवल, या आई थिंक 26,000 लेवल पे ही आपको रिटर्न मिल जा रहा है, सफिशियंट, जो 1.3% चाहिए। बस होल्ड करो, विथ 26,000 सेल किया हूं, 25,950 स्टॉप रहेगा, एंड इट इज डन, हो जाएगा।
I'm holding physical silver. What can be the exit strategy? Okay, physical silver is different. Physical silver जब आप खरीदे थे कुछ प्रीमियम देना पड़ा. You are in super profit. First of all, when to exit? That is the first question. ये जो exit, ये जो Zoom sir, I think you are also a Rainbow member. I can't see your name. But if you are a Rainbow member, you know in the risk management, entry is way more important. What was your logic for entering? But anyway, let me understand the exit. First of all, if you are using the rainbow setup, it will give you exit. But suppose you are not a rainbow user. जब आप फिजिकल सिल्वर लेते हो, जब आप सिल्वर बीज बाई करते हो, सिल्वर बीज नहीं, सॉरी, सिल्वर ईटीएफ, सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लेते हो, वो क्या है? और मैं जो एमसीएक्स ट्रेड कर रहा हूं वो क्या है? MCX trading is short term. Maximum chart is daily. When you go silver ETF, when you go silver physical, those are investments, not trading. Silver investment, your chart is the weekly chart. Monthly बहुत ज्यादा हो जाएगा. Weekly chart is your thing. अब लगाइए सिल्वर के ऊपर. अगर अगर आपको एग्जिट पता नहीं, मार्केट से पूछिए. मार्केट विल 100% गिव यू एग्जिट. कोई डाउट ही नहीं. आई एम फुल्ली श्योर, 100% श्योर इट विल गिव यू एग्जिट. कैसे देखना है? पॉसिबली आप इंडिया की, सो आई विल नॉट टेक यू टू इंटरनेशनल कॉमिक्स. सिल्वर मिनी डाउ स्ट्रक्चर आएगा, 100% आएगा. 3,20,000. कोई बोला था कि ये 3,20,000 पहुंचेगा? कोई एनालिस्ट? आई डोंट नो ऑफ एनी वन. आपको मालूम होगा तो शेयर कर सकते हैं. हु शेयर की 3 लाख हो जाएगा. अब लोग बोलेंगे अरे सिल्वर 4 लाख हो सकता है, 5 लाख. नोबॉडी नोज. तो एक डाउ स्ट्रक्चर का फिजिकल में इंतजार कीजिए. अगर आपके कॉन्फिसर उससे कहीं ऐसा तो नहीं होगा, लेट हो जा सकते हैं. हार्डली लेट होंगे, हार्डली. टीसीएस वीकली चार्ट कहां दिया था डाउ स्ट्रक्चर? ये रहा फर्स्ट डाउ. अब जब टीसीएस गिर जाएगा लोग कैसे एग्जिट, ये रहा एग्जिट हो गया. ये रहा 3197. डाउ स्ट्रक्चर ब्रोकन, आई एग्जिट. आई डोंट क्वेश्चन. क्योंकि कोई शर्मिंदा नहीं है कि फिर से हम लोग बाई कर सकते हैं. मे बी आई बी रॉन्ग. फिर अगर आप बोल सकते फिर से बढ़ सकता है, फिर से डेफिनेटली बढ़ सकता है. देन वी विल हैव अ प्लान. ओके चलो होल्ड करते हैं. सिल्वर ऐसा भी आप कर सकते हैं, होल्ड फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, फॉर एवर काइंड. बट मैं आपका नजर डालना चाहूंगा रिगार्डिंग सिल्वर. लेट्स टेक यू टू सिल्वर. सिल्वर इन द हिस्टोरिकली जब बढ़ा है, ऐसे ही क्रेजीली बढ़ा है. एंड देन इट कम्स डाउन इक्वली क्रेजीली. एंड व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग डाउ स्ट्रक्चर, हर टर्न का नोट कीजिए. जैसे 2000, ये रहा, ये टर्न, कैंडल में भी सिग्नल आएगा, इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकडाउन होगा, तब जाके आप एग्जिट कर सकते हैं. मैं ये कभी किया नहीं, आई एम नॉट अवेयर, बट वन ऑफ द स्टूडेंट सेड कि व्हाट ही डिड, मे बी यू कैन आस्क इन द ग्रुप इफ यू आर फ्रॉम द रेनबो ग्रुप, कि उन्होंने क्या किया, फिजिकल सिल्वर लिया, फिर वो ज्वेलर को कुछ लेंडिंग किया है, एंड गेटिंग 1% रिटर्न टू लेंड इट टू द ज्वेलर. तो अगर आपको कुछ ऐसा ज्वेलर मालूम है, इफ यू नो सम ज्वेलर्स, प्लीज रीच आउट, और रीच आउट टू दैट रेनबो मेंबर कि हाउ ही इज डूइंग इट. आई हैव नेवर डन इट, सो आई पर्सनली डू नॉट नो हाउ टू डू इट. मीन्स मेरा कोई ज्वेलर के साथ आना जाना भी नहीं है. आई विल बी वेरी केयरफुल, लेंड इट टू देम. मे बी दे विल नॉट रिटर्न इट, आई डोंट नो. बट ही इज गेनिंग, सिल्वर भी मिला, उसके साथ 1% रिटर्न भी मिल रहा है.
सो डिफरेंट तरीके से रिटर्न, बट सिल्वर और गोल्ड में एक डिफरेंस है, सिल्वर रिएक्शन करता है तो ब्लैक हो जाता है, बट गोल्ड जो होता है वो इंडेस्ट्रक्टिबल। तो वो कंसिडर कीजिएगा व्हेन यू हैव बॉट फिजिकल सिल्वर। इन इंडिया इज एनी नेचुरल गैस ईटीएफ? नो, इंडिया में कोई नेचुरल गैस का ईटीएफ नहीं है। नेचुरल गैस का ईटीएफ इंटरनेशनली अवेलेबल है जिसका नाम है यूएनजी, जो 1x लेवरेज का है, और जो डबल एक्स लेवरेज का है उसका नाम है बॉयल। नेचुरल गैस मतलब 1% बढ़ेगा तो बॉयल बढ़ेगा 2%। वेरएज नेचुरल गैस को शॉर्ट भी कर सकते हैं ईटीएफ के जरिए, जिसका नाम है कोल्ड। नेचुरल गैस जब 1% डाउन होगा, कोल्ड अप होगा 2% अप्रोक्सीमेटली। नीरव सर का क्वेश्चन, इन जीरोधा व्हेन वी आर प्लेजिंग बॉन्ड्स फॉर लेवरेज, ओके, देर इज अ कंडीशन 50% के, यही तो मैं बोल रहा हूं, यही बेस्ट पार्ट है बॉन्ड्स का। बॉन्ड्स आर कंसिडर्ड कैश। इक्विटी प्लेज करोगे कर सकते हो, बट इक्विटी विल नॉट बी कंसिडर्ड कैश, बॉन्ड विल बी कंसिडर्ड कैश। मतलब आपका 5 लाख रुपए का डेरिवेटिव लिए, 2.5 लाख, 2.5 लाख हैज टू बी कैश। और देखिएगा नीरव सर, कैश एंड इक्विवेलेंट्स, बॉन्ड आता है इक्विवेलेंट्स के अंदर। दैट मीन्स व्हेन यू प्लेज अ बॉन्ड, it is as good as cash. But when you pledge an equity, it is not considered as cash. Tata Steel is looking strong. अगर इफ यू आर, अगर आप मेरे सेशन रेगुलरली ज्वाइन करते हैं सर, यू नो दिस कमेंट इज नॉट राइट, राइट? आपको ये मालूम होना चाहिए। ये और एक इशू है। टाटा स्टील स्ट्रांग कहां, वह, मुझे तो वीकनेस दिख रहा है। टाटा स्टील तो मुझे एक्सट्रीमली बियरिश दिख रहा है 10 सेकेंड्स में। टाइम फ्रेम क्या है, तब जाके हम लोग कह सकते हैं कि बुलिश और बियरिश। तो मैं, मुझे स्पेशली स्टॉक्स के लिए, स्पेशली कमोडिटी के लिए आई कैन प्ले विद द लाइन, बट स्टॉक के लिए स्पेसिफिकली मुझे ये रेनबो चाहिए टू गेट द रीडिंग्स। या टाटा स्टील लुक स्ट्रॉन्ग, बट इसमें स्पीड थोड़ा कम है। सो मेजर सुपर अपसाइड बिग जंप इमीडिएटली विदाउट द स्पीड या स्ट्रेंथ, ये दोनों ना रहने से कोई स्टॉक वेरी फास्ट मूव नहीं करेगा। दैट यू कैन बैक टेस्ट इफ यू हैव द सेट। सो टाटा स्टील स्ट्रॉन्ग, नो डाउट अबाउट दिस। तो इसके साथ साथ जरूर थोड़ा फंडामेंटल भी देखिए, क्या वैल्यू प्रोपोजिशन। 34 PE इज नॉट अ चीप स्टॉक। फिर मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि स्टॉक नहीं बढ़ सकता, बिकॉज फंडामेंटल एंड टाइमिंग दीज टू आर टू। अब आप क्या करेंगे कि डेली चार्ट में एक एंट्री पॉइंट ढूंढते हैं। करंटली इज देयर एन एंट्री? नो। प्राइस एक्शन बुलिश होना पड़ेगा मिनिमम, न्यूट्रल है, मोमेंटम फेवर में नहीं है, तो कोई एंट्री पॉइंट इमीडिएटली है नहीं। तो रेनबो यूजर्स क्या करेंगे, इफ टाटा स्टील इज द वन यू लाइक, प्राइस एक्शन बुलिश डालेंगे, साथ में ऐड कंडीशन करेंगे कि एसेट मास्टर या स्टॉक मास्टर, सॉरी स्टॉक मास्टर एसटी मोमो बुलिश, ऐड एंड नाउ क्रिएट। आपको राइट टाइम पे सिग्नल आ जाएगा व्हेन इट इज बुलिश एंड मोमेंटम आपके साथ है। How I can take position trade in gold mini and silver mini? If I take in gold 10, is it okay to hold overnight? No. As long as you have no plan, it is not okay to trade at all. ट्रेड करना ही नहीं चाहिए इफ यू डोंट हैव द प्लान। जो नारायण सर, यू आर फ्रॉम द सीसीएमटी बैच, मास्टर क्लास कॉमोडिटी। जब तक आप वो प्लान नहीं बनाएंगे, ये कंफ्यूजन होता रहेगा।
और हर बार देखिए ये आपके अंदर हो रहा है। सिल्वर मिनीज आपके अंदर एक फियर ऑफ मिसिंग आउट क्रिएट हो रहा है। तो पहले प्लान क्या है? टाइम फ्रेम किस में ट्रेड करें? डेली चार्ट, गोल्ड मिनी, 15 मिनट, 2 आवर, क्या है? आई होल्ड गोल्ड पोजीशन ओवरनाइट। कल भी होल्ड किया था, आज भी होल्ड कर रहा हूं, लग रहा है आज रात को भी होल्ड करूंगा इफ द सिग्नल रिमेन्स। मतलब कोई मैंडेटरी मैंने लिख नहीं दिया कि आज हाँ मैं होल्ड करूंगा ही। अगर मेरा सिग्नल है विच इज लाइकली टू रिमेन, आई विल होल्ड। लॉस हो सकता है, हाँ हो सकता है। वर्ड्स तो प्रॉफिट में हूं, थोड़ा प्रॉफिट चला जा, हाँ पॉसिबल। वो जान के ही मैं ले रहा हूं, वो कंसिडर किया। अगर गोल्ड बहुत गिरा, विल माई अकाउंट ब्लो अप? नो, ऐसा पोजीशन कभी नहीं लूंगा जिसमें मेरा अकाउंट ब्लो अप हो जाएगा। मैं धीरे धीरे पैसा बनाने में बिलीव करता हूं, एंड दैट इज क्वाइट अ गुड रिटर्न आई एम गेटिंग। लास्ट ईयर भी, आई होप, कोई गारंटी नहीं कि इस बार कर पाऊंगा, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट एंड आई थिंक आई विल बी एबल टू डू इट। सो यस, गोल्ड मिनी हो, गोल्ड 10 हो, गोल्ड पेटल हो, गेम सेम है। बट अगर आप इतना पोजीशन लिए कि साइकोलॉजिकली होल्ड नहीं कर पाए, एक एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। एक जन ने पहली बार गोल्ड ट्रेड कर, पॉसिबली मेरा क्लास किए नहीं, तो उन्होंने सब्सक्राइब किया, क्योंकि दिस स्लोली मनी मेकिंग बहुत लोगों के लिए बोरिंग है। आ, तो उन्होंने क्या किया, पहली बार, सिंस उनके पास 70 लाख रुपीज है, 70 लाख का कैपिटल है फॉर से डेरिवेटिव ट्रेडिंग, एकदम में गोल्ड मेगा ले लिए। किस प्राइस में लिए थे? 1,14,000। गोल्ड थोड़ा सा गिरा, ज्यादा नहीं, 1.5 लाख रुपए का लॉस लग रहा था, पैनिक हो गया, जो बस 2% था अकाउंट का, काट दिए कंप्लीटली। फिर उन्होंने क्या डिसीजन, आई एम वेरी मच एज्यूमिंग, क्या डिसीजन लिए होंगे? कमोडिटी ट्रेडिंग इज रिस्की। ये नहीं कि मैंने बहुत ज्यादा ले लिया रादर देन जो मैं डाइजेस्ट कर सकता, क्योंकि हड़बड़ी था पैसा बनाने का। ही कुड हैव गॉन फॉर गोल्ड मिनी, गोल्ड पेटल, गोल्ड 10, एंड आसानी से होल्ड कर पाते, एंड गोल्ड इज नाउ 1,50,000। बट वो नहीं, उनको बहुत जल्दी था। सो जरूर ओवरनाइट होल्ड कर सकते हैं, मैनेजेबल क्वांटिटी होल्ड करेंगे तो ओवर द पीरियड, पूरे साल में अच्छा रिटर्न आएगा। जो जो आज तक इस मार्केट में एक दिन में करोड़पति होना चाहा, वो लोग अब नहीं रहे। बट सबसे पहले आता है प्लान कि क्या खरीदेंगे। कैन आई टेक गोल्ड मिनी? फिर आप बोल रहे हैं गोल्ड 10। पहले डिसाइड कर लीजिए, गोल्ड 10 क्यों? गोल्ड पेटल से चालू कीजिए, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने दीजिए। आज से चलिए एक एक महीना, पॉसिबली वन वन मंथ बिफोर यू हैव टेकन द क्लास, सिंस देन गोल्ड इज अप, व्हाई डिड नॉट यू थिंक देन कि चलो गोल्ड बाय कर? मैं ये पॉइंट आउट करना चाह रहा था, इट्स नॉट दैट कोई फॉल्ट निकाल रहा हूं। ये जो मूवमेंट, आपका जो फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये आपका जजमेंट को क्लाउडी कर दे रहा है। वो अवॉइड करने के लिए जो पाथ मैंने सजेस्ट किया कि अपने क्लास में, काइंडली उसको फॉलो कीजिए। फिर गोल्ड तो अब एक दिन में खत्म नहीं होगा, कल रहेगा, परसों, नेक्स्ट ईयर, अब ईयर आफ्टर दैट। लास्ट 16 years ऑफ माई करियर मैं गोल्ड को देख रहा हूं, एंड वेरी लाइकली टिल द डे आई डाई गोल्ड रहेगा फॉर ट्रेडिंग। मेरे फर्स्ट मेंटर डॉक्टर बॉबी गोल्ड ही करते थे, एंड ही वाज 75 years ओल्ड, दैट मीन्स गोल्ड और भी पहले था। सो ट्रेडिंग चला जाने मतलब इट्स नॉट गोइंग अवे। पेशेंटली, बिना मूवमेंट, ये जो मिस हो गया वो इन्फ्लुएंस में ना जाके एक प्लान बनाइए, जैसा क्लास में डिस्कस किया गया, और प्लान के साथ ट्रेडिंग की। कोई नहीं जानता सिल्वर 4 लाख होगा या 2,50,000।
जैसा होगा मार्केट पता चल जाएगा। और उस आइदर डाउ या तो रेनबो, दोनों में ही पता चलेगा, और वो इनफ होगा ट्रेडिंग के लिए। हाँ, ये रहा एक बढ़िया क्वेश्चन कि इटरनल वन डे टाइम फ्रेम, ये बताओ कि कौन सा टाइम फ्रेम। यूजुअली जब आप वन डे में खेल रहे हैं तो, या जो भी खेल रहे हैं, एक अपर टाइम फ्रेम को भी देखिएगा, इंपॉर्टेंट होता है। अगर कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि टाइम मेज भी एक चीज है, तो मत देखिए। बट अगर क्लैरिटी है कि हाउ टू यूज इट, देन जरूर देखिए। तो अब बोलिए, पहले डाउ देखते हैं, फिर तो रेनबो है ही। मेरा व्यू आपको नहीं चाहिए, मुझे इटरनल एट द मोमेंट आई लाइक। अगर आपको इलान मार्केट्स में जाएंगे तो आपको मेरे कोर्स के अंडर एक जन ने 1 रेटिंग दिया है, 1। यू नो व्हाई? बिकॉज आई हैव आस्क्ड, मैंने प्रेडिक्ट नहीं की, यहीं पे मैंने बोला था कि बाई इटरनल, मैं बाई कर, मतलब मुझे लग रहा है एज पर रूल। बट उनका पॉइंट था, अरे ये देखो ये कितना खराब आदमी है कि इटरनल जैसा चीज बाई करे जिसका अर्निंग बहुत खराब है। ही मिस जज कि फंडामेंटल और टाइमिंग दोनों सेम नहीं है। तो अभी क्या है इटरनल में? मेरा व्यू आपको नहीं चाहिए, मार्केट को पूछिए, भाई इटरनल तुम क्या हो? बियरिश हूं, जब से ये ब्रेक हुआ है बुलिश नहीं हूं, और डाउ स्ट्रक्चर के साथ बियरिश हूं। अब डेली चार्ट में पूछिए क्या है, या मूव के बाद ये ब्रेकडाउन हो गया, होप का जगह है ही नहीं। मार्केट क्लियरली बोल दिया। कैन इट ड्रॉप 20%? या इट कैन। कैन इट ड्रॉप 5%? या दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। प्रेडिक्ट करने का कोई जगह है नहीं, जरूरत नहीं है। मतलब डू यू रियली हैव, मतलब मुझे नहीं है, शायद आपको, डू यू हैव रियली स्किल लाइक मिस्टर बाफे टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ अ कंपनी? इफ नॉट, देर इज नो पॉइंट चीटिंग टू सेल्फ। भाई आई एम नॉट मिस्टर बाफे, आई नो स्विंग, एंड स्विंग वाइज इट इज नॉट गुड। डेली चार्ट बियरिश। सो क्या स्ट्रेटेजी खेलना है? बियर स्ट्रेटेजी। आप अगर इटरनल में फ्यूचर, तो फ्यूचर शॉर्ट या इंट्राडे शॉर्ट, उसके लिए इंट्राडे चार्ट देखना पड़ेगा, या फिर बियर कॉल, इस लेवल पे बियर कॉल करेंगे 300 पे, वो अलग क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन। बट अभी क्या है? वीकली बियरिश। डाउट करने का तो कुछ है नहीं, कंफ्यूजन कुछ नहीं है। डाउ स्ट्रक्चर बियरिश, बियरिश। व्यू का भी बस दो चीज, एक कौन सा टाइम फ्रेम जो आप राइटली से डेली, और उसमें व्यू। अब रैदर क्या देखना चाहिए आशुतोष जी, ये जो मैं पूछ रहा हूं, ये जो व्यू आपने पूछा, कहीं ये तो नहीं दैट इज यू आर होल्डिंग दिस स्टॉक आउट ऑफ होप, एंड that is pushing you to ask the question? Then those are the things you should psychologically evaluate. सर ऑप्शन ट्रेड मॉर्निंग में सही होता है या एनी टाइम ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स? ये एक, मतलब बहुत ही जेनरिक क्वेश्चन हो गया। मतलब देयर आर स्ट्रेटेजीज जिसको बोलते हैं ओपनिंग स्ट्रेटेजी। आई नो सम ओपनिंग स्ट्रेटेजीज बट आई डोंट प्ले देम, बिकॉज मैं पोजिशनल ट्रेड में प्रेफर करता हूं। और मेरा एक रूल मिनिमम है, फर्स्ट 15 मिनट्स आई विल नॉट ट्रेड। क्या कोई भी फर्स्ट 15 मिनट्स में ट्रेड नहीं करता? हाँ करता है। विवेक सर के ऑफिस में ही लोग हैं जो मशीन लेके बैठ के मशीन ट्रेड करते हैं, काइंड ऑफ एल्गो, मिक्स एल्गो विथ 1 मिनट। मैं नहीं खेलता। आप पहले टाइम फ्रेम, फिर अगर प्रीति जी क्लास किए हैं तो क्लोजिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइस साइकोलॉजी क्लास से, नियर क्लोजिंग। तो मैं 2 घंटे का चार्ट, मतलब मेरा कौन सा टाइम हुआ, 9:15 के बाद 11:15, 1:15, 3:15, अराउंड उस टाइम ट्रेड करना है।
यूजुअली क्या होता है मार्केट में, इनिशियल जब ओपनिंग होता है बहुत फ्लक्चुएशन आ जाता है। जो लोग ओपनिंग स्ट्रेटेजी खेलते हैं दे 500 स्टॉक नहीं लेते, 4-5 स्टॉक, और उसमें भी होमवर्क करके प्रिपेयर रहते हैं। सो क्या स्ट्रेटेजी एग्जैक्टली आप खेल रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट कुछ जनरल रूल्स है, जैसे कोई कॉमोडिटी अगर इंट्राडे करना चाहेगा, यूजुअली इवनिंग इज अ, यूजुअली, कोई फिक्स नहीं है, यूजुअली इवनिंग इज अ गुड टाइम। कोई यहां पे बोलेगा सर यूजुअली क्यों, ऑलवेज क्यों नहीं। एक एग्जांपल दे सकता हूं, कुछ लोग हैं जो सोचे थे, या आप भी सोचेंगे, buying crude oil at $1 seemed fantastic. But 2020 crude oil went negative. नेगेटिव प्राइस हो गया। दैट मीन्स जिन्होंने जीरो में बाई किया क्रूड ऑयल, फ्री में काइंड ऑफ, फिर भी लॉस किए। सो देर इज नथिंग कॉल्ड ऑलवेज इन द मार्केट। मैं प्रेफर करूंगा जो मैं वो आपको बता सकता हूं। फॉर इन्वेस्टमेंट सिल्वर बीज और सिल्वर ईटीएफ, विच वन इज बेटर? गुड क्वेश्चन। द वन बेटर किससे पूछना है? ग्रेट मिस्टर सेज, मिस्टर वॉरेन बफे, सेज ऑफ ओमाहा। एंड ये भी जनरल है, मैं अपने संडे स्टॉर्म में भी कवर किया हूं। द वन विद द लोएस्ट कॉस्ट। Gold bees is the popular, and that is because of the psychology of BEES bees, but their cost is the highest, 0.8%. ICICI Gold ETF cost is much lower, half of that. इस बार गोल्ड up 60%, so it does not matter. Someday it will be up 10%, or some year may. For long term hold, cost matters. How to choose the ETF? One with the lowest cost. Do we need to manually filter stocks in Rainbow? No, not necessarily, but I will recommend Rainbow में चार्ट देखने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, आप देखिए इमीडिएटली। लेट्स लुक एट सम ऑफ द स्टॉक्स। फॉर एग्जांपल, कोई भी ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है, तो कौन सा सेगमेंट हम लोग स्ट्रॉन्ग देखें? मेटल, मेटल इंडेक्स। कौन सा स्टॉक मेटल इंडेक्स में है? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जब कैंडल स्टिक लगा रहे हैं, ऑल वर्क कैंडल स्टिक से लाइन बेटर है, बिकॉज उसको मास्टर करना डिफिकल्ट है। कैंडल प्रोमोट किया जाता है, बट कैंडल में 400 वेरिएशंस है। आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विथ कैंडल। स्टिल बोलूंगा लाइन चार्ट इज वे बेटर फॉर बिगिनर्स। सो स्टॉक मास्टर में जाते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लग। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार चार्ट को देख, अदानी में आई हाईलाइटेड, भाई इसमें रहना नहीं चाहिए, मतलब मैं नहीं रहूंगा। क्लियर, उससे गिरा है। मुझे मालूम था कि ये गिरेगा? नो, नहीं मालूम था। आई जस्ट फॉलोड मार्केट्स गाइडेंस। कितना टाइम लगता है कि फर्स्ट इनिशियल चार्ट को डिसाइफर करने में? जेएसडब्ल्यू स्टील में पसंद लग रहा है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग लग रहा है? क्लियर हिंजिंग स्ट्रॉन्ग। इसका मतलब ये नहीं कि चलो जंप करो, राइट एंट्री भी चाहिए। अब वेलकॉर्प स्ट्रॉन्ग है या वेदांता स्ट्रॉन्ग है? क्लियर है ना, कितना टाइम लगता है? नाउ जो आपका क्वेश्चन था कि अगर रेनबो में क्या स्टॉक इंडिविजुअल, हम लोग पहले इंडिविजुअली ढूंढते थे, बट अब आ गया है स्लैश पाइन हाइफेन स्क्रीनर, सॉरी, पाइन हाइफेन स्क्रीनर। ये रहा पाइन स्क्रीनर आ गया। अब उसमें क्या करना है कि मुझे ढूंढना है कि फॉर एग्जाम्पल जंप करने के लिए नीड टू फाइंड आउट, कि सॉर्ट आउट करने के लिए कि निफ्टी का एक लिस्ट तो चाहिए मिनिमम। सो निफ्टी का मैंने एक टॉप स्टॉक्स का लिस्ट बनाया, अपडेट करता हूं, रिमूव करता हूं, बट टॉप स्टॉक से 900 प्लस स्टॉक्स। अब मुझे जानना है कि कौन सा स्टॉक में मैंने रेनबोस का एक स्क्रीनर एक्स है जो अपडेट करना चाहिए। इट इज माई काइंड ऑफ अ फॉल्ट ऑल्सो, कि और भी इंप्रूव किया जा सकता है, आई विल डू इट।
मुझे बताओ कि किस में आज बाई सिग्नल आ रहा है वीकली में। ये ब्रैड मार्केट में भी मैं गारंटी देता हूं किसी ना किसी में बाई सिग्नल आएगा। बाई सिग्नल मतलब ये नहीं जंप करना, विच स्टॉक्स आर डिफरेंट देन कॉमोडिटी। कॉमोडिटी में फिर भी मैं जंप कर सकता हूं, बट बाई सिग्नल पे स्टॉक्स में हजार स्टॉक्स है, मेनी अदर चीज देखना होता है। तो मिल गया चार स्टॉक। एक बार चार्ट देखते हैं। ईसाफ। मैं प्रेफर करता हूं चार्ट को देखना, क्योंकि रेनबो के साथ बहुत कुछ समझ में आ सकता है। दोज हु आर मोर सीनियर मेंबर दे विल नो इट इज नॉट जस्ट यू गेट ए सिग्नल। ये स्टॉक में जो चाहिए एक प्रोबेबिलिटी पाथ समझाता है। स्टॉक मास्टर, वीकली चार्ट, श्री सीमेंट। एक बाई सिग्नल आया तो मैं इसको नोटिस में रखना चाहता। आई डोंट थिंक स्टॉक इज ग्रेट टू जंप इन राइट नाउ। इस स्टॉक में आपको हम लोग देखना चाहेंगे क्या वैल्यू मिल रहा है मुझे। 58। स्टॉक चीप नहीं है। Few other fundamental also we can have a watch. Let's look at some other stock which is more popular, say Hindustan Unilever. डाउ स्ट्रक्चर तो आप लोगों को दिख ही रहा है। तो ये लगाने से मुझे और आइडिया मिलता है। इज इट ग्रेट राइट नाउ? नो। बट रेनबो पाथ से अगर ये वैलिड रहा, the stock will try to break out from this zone in the future. I want to know about these stocks before others do. This bank has been steadily declining. तो मैं जानना चाहूंगा ये बैंक कब रेडी होगा बाइंग के लिए। फर्स्ट राउंड ऑफ बाइंग आ रहा है। फर्स्ट राउंड। फिर मैं पाथ को स्कोर रेडी नहीं है तो नो बॉडी इज गोइंग टू जंप इन टू दिस स्टॉक। मैं साथ ही साथ थोड़ा स्लाइट फंडामेंटल देखूंगा, नॉट अर्निंग। कि फिर मैं जानना चाहूंगा क्यों बाई हो रहा है। फिर ये बाई तो हो रहा है, सिग्नल तो है। मैं थोड़ा इन्वेस्टिगेट करना चाहूँ क्यों, वाई। अगर इसका अर्निंग नहीं है, फिर आज इतना खराब मार्केट में ये क्यों बाई हो रहा है। मे बी आप चैट जीपीटी का हेल्प लेंगे, भाई बताओ इसमें कुछ फंडामेंटल चेंजेस है। थोड़ा डिटेल इन्वेस्टिगेशन। क्रिसिल एक रेटिंग कंपनी, इसको देखते हैं, जिंदल 100। डाउ नहीं है, बट अगर डाउ के साथ होल्ड करेंगे तो एक लंबा होल्ड करने से बढ़िया रिटर्न हो सकता है। लेट्स लुक एट दिस स्टॉक। इट इज वेरी इन द अर्ली फेज, नॉट रेडी टू जंप इन, बहुत अर्ली बिग बाई सिग्नल। इस स्टॉक में क्लियरली दिख रहा है कि इट इज प्राइस टू अर्निंग इट्स चीप, अंडर वैल्यूड लुक्स लाइक। थोड़ा इसके बारे में जानना चाहूंगा, क्या इसका बिजनेस सच में ग्रो हो रहा है। लग तो रहा है ग्रो हो रहा है फॉर द पास्ट ईयर्स स्टेडिली। लुक्स लाइक मेक सेंस कि अच्छा इसको और थोड़ा देखा जाए। दो पार्ट है, फंडामेंटल एंड द टाइमिंग पार्ट। टाइमिंग पार्ट के अंदर बहुत कुछ है कि क्या पाथ से मूव होने का चांसेस है। रेनबो हेल्प्स टू डिसाइफर दोज पाथ, और कॉम्बिनेशन करने से इट कैन इवन बी बेटर। ठीक है 8 पी, तो थोड़ा और वेट, बिकॉज रेनबो स्कोर्स आर नॉट रेडी। मे बी एक टोकन बाई छोड़ देंगे एंड वेट करेंगे कि अच्छा फिर स्ट्रेंथ। तो स्क्रीनर अवेलेबल है ऐसा नहीं, बट मैं पर्सनल चार्ट देखना पसंद करूंगा। चिराग जी बोल रहे हैं हाउ टू गेट रेनबो इंडिकेटर्स। ये एक जर्नी है हम लोग का, जो रेनबो, इसको मैं जर्नी बोलता हूँ। इट इज नॉट ट्रेडिंग, इज नॉट अबाउट एन इंडिकेटर्स। अगर आपके माइंड में इफ यू हैड कंफ्यूज, या किसी ने आपको मिसगाइड किया है, या कोई भी सेल्स टीम हैज रीच्ड आउट, नो नो यू नीड नो। मैं हमेशा बोला यू डोंट नीड इंडिकेटर्स ऑलवेज। दिस कैन दिस हेल्प, या इज दिस पावरफुल, यस। बट मेरे पहले मेंटोर को कैंडल स्टिक्स भी मालूम नहीं था। ही वॉज अ सुपर ट्रेडर इनटू गोल्ड एंड यूरो यूएसडी। बट सो इसीलिए
थोड़ा कि अच्छा, जो प्लान बोला जाएगा साइकोलॉजी, इसके ऊपर थोड़ा काम करेंगे। तो इसीलिए इसको बोलते हैं जर्नी। आप इनके बारे में ड्यू डिलीजेंस कीजिए पहले, फिर एनीवे इट इज अवेलेबल एच डी रेनबो एंड वाया इट विल टेक यू टू बेसिकली ईलान मार्केट्स वेबसाइट, जो स्टॉकेज आप जानते होंगे, तो वहां पे लेके जाएगा एंड थ्रू स्टॉकेज यू कैन रीच आउट। बट हैव द माइंडसेट, और हम लोग मल्टी एसेट कवर करते हैं। आई ट्राई टू इंस्पायर यू टू लुक एट टू मल्टी एसेट, सो कम विथ एन ओपन माइंड and work on yourself, take this game for a longer journey, and then I think we all will going to be very well। हम लोग, मैं भी, I don't think I have proven my, मैं तो एक्सपेक्ट करूंगा मिनिमम 15 years मैं कर पाऊं, तभी मैं सक्सेसफुल हूं। So in that regard, I don't think I have become that great success yet। I'm applying the 20 factor method। Okay, that means you're COMEX gold and इसका बोल रहे हैं, COMEX gold and gold का। But I'm seeing a significant price momentum disconnect between MCX and gold beneath to 125 minutes। When the factors, gold में usually 2 घंटा लीजिए, 125 minutes एक्चुअली निफ्टी में हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे, बिकॉज वो कैंडल को कंप्लीट करता है। When the factors between two, यूएस ओपन नहीं था, टाइमिंग का डिफरेंस है। So that's why sometimes divergence comes. And because of what is going on currently overall in the broad market, that's why थोड़ा divergence आ रहा है, but long term में no major divergence। और रीडिंग के हिसाब से ये जो 20 फैक्टर आप बता रहे हैं, उससे हम लोग क्या कर रहे हैं, मार्केट से गाइडेंस ले रहे हैं कि कितना क्वांटिटी करना चाहिए। एक ट्रेड का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्वांटिटी मैनेजमेंट। तो क्वांटिटी गाइडेंस आई थिंक क्लियरली प्रोवाइड करेगा। सो कभी कभी लैगिंग या हो सकता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द टाइम फ्रेम। निफ्टी रिमेन्स ओपन टिल 11:55 ड्यूरिंग विंटर, वेर एज कॉमेक्स रिमेन्स ओपन टिल 1:30। उमा जी बोल रहे हैं ये 100%। आप कल मेंशन किए यू हैव रिटर्न, आप जनरेट कर पा रहे हैं अराउंड 65 to 70। दैट्स ग्रेट। एंड नाउ बी हम्बल कि नेक्स्ट ईयर ऐसा ग्रेट ना हो सकता है। That's okay, but how can I get my required minimum return? How can I get that 20%? So defense is the first one. Then aggressive, कभी कभी ऐसा मौका मिलेगा कि गोल्ड विल गो सुपर एंड 100% आप रिटर्न मिलेगा, नॉट ऑल द टाइम। और जो लोग हम्बल नहीं रहेगा वो क्या करेंगे, ओवरली रिस्क टेकअप करेंगे। एंड द मोमेंट सिल्वर या गोल्ड ड्रॉप्स कोई भी रीजन से बिग, पाजल हो जाएंगे पूरा। एंड धीरे धीरे जो हम लोग करेंगे वो बिल्डअप होगा ओवर टाइम। जस्ट एक ही महीना चालू हुआ है। आई एम पर्सनली डूइंग वेरी वेल दिस मंथ इन टर्म्स ऑफ माई रिटर्न ऑन द कैपिटल, बट आई एम रेडी टू एक्सेप्ट, ओके हो सके नेक्स्ट कुछ मंथ अच्छा ना हो। सो आई एम वेरी हैप्पी कि उमा जी आप कर पाए हैं कॉमोडिटी पे, एंड आई एम श्योर जल्दी आप ऑप्शन में भी कर पाएंगे। काइंडली क्लास अटेंड कीजिएगा। जो लोग क्लास अटेंड करते हैं रेगुलरली, दे टेंड टू डू बेटर। प्लीज 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 डिस्कस ओपनिंग ब्रेकआउट्स। इस क्लास में तो पॉसिबल नहीं है, मतलब ओपनिंग ब्रेकआउट, और वो हम लोग रेनबो का पार्ट भी नहीं रखे। मतलब आई ट्राई, डेफिनेटली आई ट्राई, बट यूजुअली वो रिस्की होता है। मतलब यूजुअली उसमें आई स्टिल गिव यू एन आइडिया, फेयर आइडिया आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। आई टेक अप अ फ्री क्लास। मतलब रेनबो के साथ नहीं ले सकते हैं, या आज तो डिस्कस नहीं हो सकता उत्तम जी। आई विल टेक अप a free up session in surely on this, where I will share the opening breakout strategy। Had I, since silver is shot up so much, should we reduce MCX lots lower than normal? I think it will be prudent कि इतना हाई वोलाटिलिटी में रिड्यूस किया जाए। और ऑलवेज ट्रेडिंग में पैसा जो दे इनफ है, मतलब वो गोल्ड दे, सिल्वर दे, नेचुरल गैस, गोल्ड इज ऑलवेज अ मच बेटर काउंटर। ये मैं बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूं। सो थोड़ा क्वांटिटी मैनेजमेंट, बिकॉज सिल्वर व्हेन इट रिवर्सेस, व्हेन सच ए स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को, कभी ना कभी तो रिवर्स होगा ही, फॉर एवर कंटिन्यू नहीं हो सकता।
वो बहुत वायलेंट होगा। तो एटलीस्ट सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा के रिलेटिवली लोअर, क्योंकि सिल्वर में देखिए लेवरेज कम कर दिया एक्सचेंज, बट गोल्ड में हाई लेवरेज है। मैं समझाता हूं क्विकली, इसके बाद हम लोग क्लोज कर देंगे जल्दी। गोल्ड इज अप 2.6% एंड सिल्वर इज अप 5%। दोनों में मैंने पोजीशन लिया, सपोज एग्जांपल के लिए, पोजीशन तो है बट एग्जांपल के लिए। सो सिल्वर में करंट लेवरेज है 3.5, तो मेरा गेन होगा अप्रोक्सीमेटली, चलिए कैलकुलेटर के साथ ही दिखाते हैं। दोनों में इक्वल काइंड ऑफ मार्जिन ब्लॉक किए। सिल्वर का गेन कितना है? 5.6 मल्टीप्लाइड बाई 3.5, कितना रिटर्न आएगा? 19% ऑन द मार्जिन। अब क्या किया हूं? गोल्ड लिया हूं, 2.6 मल्टीप्लाइड बाई 12 इज द लेवरेज, 31। बढ़िया रिटर्न गोल्ड में। दो पार्ट होता है डेरिवेटिव का, लेवरेज एंड वोलेटिलिटी, उसमें कंफ्यूज मत कीजिए। वेयर टू डू द रिस्क मैनेजमेंट। Uma ji, you have enrolled for the option workshop. Great. Thank you so much for enrolling and thank you for having faith in our journey. Best wishes to each and every one of you. Responsibly खेलिए इस kind of market में। बहुत फ्लक्चुएशन, दिस विल कॉज लॉट ऑफ पैनिक, और ये पैनिक देगा हमें अपॉर्चुनिटी। ये जो वीकली चार्ट दिख रहा है एट दिस पॉइंट, वी कैन नॉट रूल आउट कि निफ्टी ये बेस तक नहीं पहुंचेगा। तो वेरी फर्दर बिग डिक्लाइन इज पॉसिबल। तो ये याद रखे, वोलाटिलिटी को देख के केयरफुली गेम खेले। आई एम श्योर हम लोग का जो बेस रिटर्न वो जरूर मिलना चाहिए विथ रिस्पॉन्सिबल ट्रेडिंग। Thank you everyone for attending today's discussion. Best wishes to all of you from my side to trading and investing. And as always, happy trading, happy investing.